कंगना और शाहिद ने ओपनली एक दूसरे को किया टारगेट। क्या अभिषेक नहीं चाहते वाइफ ऐश आए ऑन सोशल मीडिया? रणवीर और दीपिका के बीच एवरीथिंग इज ऑल बट ओवर। सलमान की स्पेशल रिक्वेस्ट को किया डायरेक्टर कबीर खान ने डिक्लाइन। चाहे कंगना करे अपने को स्टार शाहिद को ऋतिक से कंपेयर, या फिर रणवीर और दीपिका का रिलेशनशिप अब हो स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। बी टाउन की लेटेस्ट स्कूप्स मिलेंगी आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। कंगना एंड शाहिद आर नॉट होल्डिंग इट बैक एनी मोर। शाहिद ने जहां कंगना को बताया था झूठा, वही अब कंगना ने कहा कि शाहिद कर रहे हैं उनके एलिजेड एक्स ऋतिक का स्टेटमेंट बोरो। शाहिद को लगता है कंगना has a habit of making stories in her head. She also has a vivid imagination. Sometimes she makes up things which are not completely true. कंगना को लगता है कि शाहिद को कीचड़ में किस करना was a nightmare, but शाहिद thinks otherwise. She also has a vivid imagination. Sometimes she makes up things which are not completely true. कंगना को लगता है कि शाहिद अपने इस डायलॉग को ऋतिक से चुरा कर बोल रहे हैं, क्योंकि ऋतिक ने भी कंगना के साथ लीगल बैटल के वक्त कही थी कुछ ऐसी ही बातें। She also has a vivid imagination. Sometimes she makes up things which are not completely true. शाहिद कंगना के बीच कोल्ड वाइब्स हमेशा से रही हैं, मगर अब ये वाइब्स थोड़ा ज्यादा ही वाइब्रेट कर रही हैं, और इस न्यूज को प्लैनेट बॉलीवुड एक्सक्लूसिवली लाया है आपके लिए। दरअसल कुछ दिनों पहले रंगून के प्रोमो में रिलीज हुए शाहिद कंगना के कीचड़ में किस करने वाले सीन पर कंगना ने कमेंट करते हुए कहा, That big mustache of Shahid is horrible. It was such a, not a turn off, but a tragedy of different level. When I asked him about it, he said he applies wax and has a running nose. मेरा नाक कीचड़ में बह के जाता है। कंगना के स्टेटमेंट पर जब शाहिद से एक्सक्लूसिवली प्लैनेट बॉलीवुड ने रिएक्शन मांगा, तो शाहिद ने कंगना की इमेजिनेटिव पावर पर लगा दिया इल्जाम। My version of the story was that I was focusing on getting the shot right, and I don't like to make personal remarks about scenes that we do, which anyways you need to do with a certain amount, especially because there's a girl involved, so I want to be very respectable about my comments, and she has the right to say what she wants, but she also has a vivid imagination. Sometimes she makes up things which are not completely true. Well, बस यही बात apparently कंगना को बहुत चुभ गई है, और उन्होंने कहा, and we quote, that line Shahid must have borrowed from Hrithik. He would have thought that, dude, I will borrow these claims from Hrithik. अब जब एक किसिंग सीन के इशू पर ये कमेंट गेम स्टार्ट हुए, तो टू कंक्लूड हमने शाहिद को खुद ही बता दिया कि कंगना ने शाहिद को ऋतिक रोशन से कंपेयर कर दिया है, बट शाहिद प्लेड सेफ, और उन्होंने कंगना के मूवी प्रमोशन स्टाइल को क्वेश्चन करते हुए कह दिया, नो कमेंट्स। कंगना ने कहा था कि यू हैव टेकन दैट लाइन फ्रॉम ऋतिक, that she thinks imaginative stuff in her head. So your reaction to it? See, there are all kinds of different ways to promote a film. This is a very credible film, and I want the focus of this film to stay on the quality of the film and the content of the film. Me and Vishal sir have made 2 films in the past, and we've always chosen to promote the films on the basis of their content, because we believe that the films are worth watching. And I don't want these kind of things, these questions that you're asking me and asking me to give a reply, to distract the audience from why they should come and watch Rangoon. There's no other reason that, or any other thing that we need to do to promote it like that. So yeah, I would choose to say come watch Rangoon on the 24th of Feb, and no comment to what you have said. Well, भले ही शाहिद इस इशू पर फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, बट विल कंगना नॉट ब्लो दिस अप? ये सिर्फ कंगना ही जानती हैं, और जितना हम कंगना को जानते हैं वो चुप तो नहीं रहेंगी। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणवीर और दीपिका के बीच प्रॉब्लम्स की खबरें तो काफी टाइम से आ रही थी, but the news is not good from the sets of पद्मावती। रणवीर और दीपिका के बीच अब एवरीथिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। क्या रणवीर और दीपिका की रिलेशनशिप का हो गया है दी एंड? क्या रणवीर दीपिका के बीच रह गया है सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप? क्या रणवीर दीपिका के बीच आई दूरियां कभी खत्म नहीं होने वाली? पिछले काफी समय से आ रही है रणवीर दीपिका की प्रॉब्लम्स की खबरें। रणवीर दीपिका के रिश्ते में प्यार से ज्यादा अब नाराजगी रह गई है, और ये बात एक बार फिर नजर आई जब रिसेंटली दोनों ने अटेंड की शाहिद कपूर की प्री बर्थडे बैश।
यूँ तो इस पार्टी में दीपिका और रणवीर दोनों मौजूद थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोर्सेज दीपिका शाहिद की पार्टी में रणवीर से पहले पहुंची थी। दूसरी तरफ रणवीर भी शायद पार्टी से दीपिका के जाने का वेट कर रहे थे, इसीलिए तो दीपिका की एग्जिट के बाद ही उन्होंने पार्टी में की एंट्री। ये वही दीपिका और रणवीर हैं जो अगर एक पार्टी में नजर आते थे तो हमेशा साथी होते थे। कैमरास के सामने एक दूसरे के लिए इनका अफेक्शन साफ दिखता भी था। लेकिन अब इनके बीच की इक्वेशन पूरी तरह से बदल चुकी है। सोर्सेज की माने तो दोनों के बीच नाराजगी ही दोनों के बीच दूरियों की वजह बनी है। हालांकि इनके पर्सनल रिलेशनशिप का इनकी प्रोफेशनल लाइफ पर कोई असर ना पड़े, इसीलिए रणवीर और दीपिका दोनों ही अपना पुराना प्रोफेशनल रिलेशनशिप दिखाने के लिए तैयार हैं। दरअसल रणवीर दीपिका नहीं चाहते हैं कि इनकी मच टॉक्ड अबाउट फिल्म पद्मावती इनके पर्सनल रिलेशन की वजह से अफेक्ट करे। यही वजह है कि दोनों ने प्रोफेशनली साथ रहने का डिसीजन लिया है। वैसे सुनने में आया है कि रणवीर दीपिका के साथ अपने बिगड़े हुए रिलेशन को सुधारना चाहते हैं, लेकिन बात कुछ बन नहीं रही है। बट वी होप प्रोफेशनली साथ रहकर रणवीर दीपिका के बीच की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। अभिषेक बच्चन नहीं चाहते कि वाइफ ऐश करे ट्विटर पर डेब्यू। ट्विटर ट्रोल से खुद परेशान अभिषेक क्या कर रहे हैं कोशिश टू सेव ऐश फ्रॉम द रॉथ ऑफ ऑनलाइन ट्रोल्स। ऐश्वर्या राय बच्चन आना चाहती है सोशल मीडिया पर। ऐश अपने फैंस से सोशल मीडिया पर करना चाहते हैं इंटरैक्ट, पर अभिषेक बच्चन है कि ऐश को रख रहे हैं सोशल मीडिया से दूर। जी हाँ, अभिषेक बच्चन नहीं चाहते कि ऐश्वर्या राय आए ऑन सोशल मीडिया और इंटरैक्ट करें अपने फैंस से। क्या अभिषेक को लग रहा है डर कि उनकी ही तरह सोशल मीडिया पर साइबर बुलीज ऐश को करेंगे टारगेट? क्या अभिषेक ट्रोल से ऐश को बचाने के लिए उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखने की दे रहे हैं सलाह? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, ऐश अपनी फिल्म के प्रमोशन करने से काफी पहले सोशल मीडिया पर आना चाहती थी और अपनी टीम से खासकर ऐश ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली थी। लेकिन जब ये बात अभिषेक बच्चन को पता चली तो उन्होंने ऐश से बात की और उन्हें अपने डिसीजन को फिर से सोचने के लिए कहा। सोर्सेज की माने तो आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का शिकार बनने वाले अभिषेक नहीं चाहते कि उनकी ही तरह ऐश के हर एक पोस्ट को टारगेट किया जाए और सोशल मीडिया की नेगेटिविटी ऐश को परेशान करे। हम आपको बता दें, सोशल मीडिया पर अभिषेक उन कुछ सेलेब्स में से एक है जिन्हें काफी ज्यादा टारगेट किया जाता है। ऐसे में शायद अभिषेक इसी डर की वजह से ऐश को नहीं आने देना चाहते ऑन सोशल मीडिया। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद कटरीना के करियर को एक लाइफलाइन देना चाहते थे क्लोज फ्रेंड सलमान, पर बॉलीवुड के सुल्तान के इस प्लान को फ्लॉप कर दिया डायरेक्टर कबीर खान ने। तो ऐसा क्या आइडिया था सलमान का जिसको कबीर खान ने सीधा कर दिया रिजेक्ट? सलमान चाहते थे उनकी फिल्म ट्यूबलाइट में कटरीना का हो कैमियो। आफ्टर स्ट्रीक्स ऑफ अ फ्लॉप, कटरीना कैफ ट्यूबलाइट जैसी बड़ी फिल्म के साथ जुड़े और एक स्पेशल अपीयरेंस दें। लेकिन सलमान के इस आइडिया को कबीर खान ने कर दिया रिजेक्ट। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जब सलमान ने अपनी गुड फ्रेंड कटरीना के कैमियो की बात फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान से की तो वो सलमान से कुछ खास इम्प्रेस नहीं हुए। दरअसल सलमान को लगा था कि अगर उनकी फिल्म में कटरीना एक छोटे से रोल में भी नजर आती हैं, तो इससे वो फिर से हर तरफ छा जाएंगी। ऐसे में सलमान कबीर के पास गए, मगर कबीर खान को सलमान का फिल्म में कटरीना के कैमियो का आइडिया फोर्स्ड लगा। सलमान ने अपेरेंटली कटरीना के कैमियो को लेकर कबीर खान को खूब कन्विंस करने की भी कोशिश की, लेकिन कबीर खान ने जरा भी इंटरेस्ट नहीं लिया कटरीना में। खैर, मगर यहाँ एक अच्छी बात यह है कि सलमान कटरीना के करियर को लेकर बेहद फिक्रमंद हो गए हैं और कटरीना के साथ एक पूरी फिल्म कर रहे हैं। और ये बात तो सभी जानते हैं कि सलमान किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो बॉलीवुड में उसका करियर आसमान छूने लगता है, और फिर कटरीना और सलमान की जोड़ी तो ऑलरेडी हिट रह चुकी है।
सलमान के फैंस ने कटरीना के साथ उनकी पेयरिंग को जबरदस्त प्यार दिया था। ऐसे में अगर कटरीना सलमान की फिल्म में एक छोटा सा कैमियो नहीं भी कर पाई हैं, तो क्या हुआ, सलमान के साथ वो पूरी फिल्म करने वाली हैं। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। लगता है कंगना रनौत लव्स टू बी इन द न्यूज, इसीलिए उन्होंने एक्सक्लूसिवली ऑन जूम कहा है कि इस साल होगी उनकी शादी और जल्द ही करेंगी वो उस स्पेशल समवन को रिवील। नाउ वी आर एब्सोल्युटली एक्साइटेड, आरंट यू? Planet Bollywood. कंगना रनौत इस साल करने वाली है शादी। कंगना ने जूम पर एक्सक्लूसिवली कंफर्म की अपनी शादी की न्यूज। Of course. वेल, प्लैनेट बॉलीवुड पर कंगना ने खुद बताया कि वो ईयर 2017 में बंध जाएंगी शादी के बंधन में। I'm sure it's going to break a lot of hearts, but there's one thing being said that you apparently might get married this year. Of course. There is? Yes. Of course. There is? Yes. ऐसे में सब यही जानना चाहते हैं कि वो लकी मैन कौन है जिनके साथ कंगना शादी का डिसीजन ले चुकी हैं। आखिर कौन है कंगना के मिस्टर परफेक्ट? Mr. Man. Or like give us little hints on how. No, let's just No? this, like I said, this week is for Rangoon. Okay. Let's just talk about it. We have enough time. The year has just started. We have enough time to talk about it. लगता है कंगना अपने मिस्टर राइट के बारे में अभी किसी को बताना नहीं चाहती, लेकिन बाकी स्टार्स की तरह अपनी शादी की न्यूज को वो छिपा कर भी नहीं रखना चाहती हैं। ऐसे में देखना ये है कि कब बिंदास और बेबाक कंगना दुनिया के सामने लेकर आती हैं अपने मिस्टर परफेक्ट को। फरुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। कैसे मनाया शाहिद के प्री बर्थडे को वाइफ मीरा ने? फाइंड आउट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. जूम लाया है आपके लिए शाहिद की प्री बर्थडे बैश के एक्सक्लूसिव विजुअल्स। शाहिद के बर्थडे पार्टी को बनाया उनकी वाइफ मीरा ने एक स्पेशल इवेंट, और यहाँ पे बी टाउन यंगस्टर्स वरुण, आलिया, सिद्धार्थ और दीपिका भी हुए शामिल। लेट्स टेक अ लुक। Planet Bollywood. शाहिद की लविंग वाइफ मीरा ने रखी शाहिद के लिए बर्थडे पार्टी, जिसे स्टार्स ने अपनी प्रेजेंस से बनाया और भी स्पेशल। वैसे तो शाहिद फरवरी 25 को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अपनी प्री बर्थडे बैश को उन्होंने खूब एंजॉय किया और कैमरास के सामने केक कटिंग की। शाहिद की इस प्री बर्थडे बैश में कई सेलेब्स नजर आए, जहां दीपिका से लेकर कटरीना कैफ, रणवीर अपने फंकी और कूल अटायर में दिखे, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, वरुण, नताशा, सिद्धार्थ, आलिया, शाहिद की रूमर्ड एक्स सोनाक्षी, फरहान अख्तर, रंगून के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज, अयान मुखर्जी सभी शामिल थे। शाहिद की इस पार्टी में उनके रंगून को एक्टर सैफ और उनकी बेटर हाफ करीना तो नहीं आए, लेकिन उनकी डॉटर सारा अली खान को क्लिक किया गया। पार्टी की हाईलाइट रही वरुण नताशा का यहाँ साथ आकर खुद को एज ए कपल पोर्ट्रे करना, और सिद्धार्थ आलिया का एक साथ एक कार से पार्टी से जाना। रणवीर और दीपिका भी पार्टी की हाईलाइट बने, क्योंकि इन्होंने अलग अलग टाइम पर ली पार्टी में एंट्री। दीपिका पार्टी से रणवीर के एंट्री करने से पहले ही चली गयीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। नील नितिन मुकेश की रिसेप्शन रही एक स्टार स्टारड अफेयर, और यहाँ पे दिखे बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक स्टार्स। सलमान से लेकर अमिताभ जया और कटरीना ने किया इस इवेंट को ग्रेस। Planet Bollywood. एक्टर नील नितिन मुकेश ने अपनी न्यूली वेड वाइफ रुक्मिणी सहाय के साथ होस्ट की एक लैविश रिसेप्शन पार्टी। इस पार्टी में नजर आए उनके कई बॉलीवुड फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स। बिग बी और जया जी के एंटर करने के बाद इस 5 स्टार होटल पार्टी से जाते हुए नजर आए जैकी श्रॉफ, और फिर कई बी टाउन सेलिब्रिटीज का आने का सिलसिला लगा रहा।
नील और रुक्मिनी को ब्लेस और कंग्रेचुलेट करने के लिए सलमान खान ने भी निकाला टाइम। उनके अलावा वहां पहुंचे कटरीना कैफ, यूलिया वंतूर, अभिषेक बच्चन और करण बिपाशा भी। To bless the couple, other celebs who were spotted were singer Anuradha Podwal, Suraj Barjatia, Asrani, Bhajan Samraj Anup Jalota, actress Neetu Singh, Kabir Bedi, Abbas Mastan, Subrata Roy, Aftab Shivdasani with wife, Pooja Hegde, Sanjay Khan with wife, Zayed Khan, Mugdha Godse, Shreya Saran, Tushar Kapoor और रेखा। बाद में न्यूलीवेड कपल ने पोज किया इन देयर कॉम्प्लीमेंट्री ब्यूटीफुल ग्रीन रॉयल आउटफिट्स डिजाइन्ड बाय कुटूरिये मानव गंगवानी। Like the film fraternity showed up in strength to wish the newlyweds the very best. We also wish them a blessed life ahead. ब्रेक के बाद देखिए आज की टॉप खबरें इन एन ऑल न्यू फटाफट अंदाज। Planet Bollywood. वेलकम बैक। अब वक्त हो गया है प्लैनेट बॉलीवुड के सुपर फास्ट एक्सप्रेस की सवारी का, जहां मिलेंगी आपको बॉलीवुड की बिगेस्ट न्यूज इन एन ऑल न्यू फटाफट अवतार। सो जेट सेट गो। Planet Bollywood. रणवीर दीपिका के रिश्ते में प्यार से ज्यादा अब नाराजगी रह गई है और ये बात एक बार फिर नजर आई जब रिसेंटली दोनों ने अटेंड की शाहिद कपूर की प्री बर्थडे बैश। यूं तो इस पार्टी में दीपिका और रणवीर दोनों मौजूद थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोर्सेज दीपिका शाहिद की पार्टी में रणवीर से पहले पहुंची थी। दूसरी तरफ रणवीर भी शाहिद पार्टी से दीपिका के जाने का वेट कर रहे थे, इसीलिए तो दीपिका की एग्जिट के बाद ही उन्होंने पार्टी में की एंट्री। ऐश अपने फैन से सोशल मीडिया पर करना चाहती हैं इंटरैक्ट, पर अभिषेक बच्चन हैं कि ऐश को रख रहे हैं सोशल मीडिया से दूर। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ऐश अपनी फिल्म को प्रमोट करने काफी पहले सोशल मीडिया पर आना चाहती थी और अपनी टीम से कहकर ऐश ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली थी। लेकिन जब ये बात अभिषेक को पता चली तो उन्होंने ऐश से बात की और उन्हें अपने डिसीजन को फिर से सोचने के लिए कहा। सोर्सेज की माने तो आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का शिकार बनने वाले अभिषेक नहीं चाहते कि उनकी ही तरह ऐश के हर एक पोस्ट को टारगेट किया जाए और सोशल मीडिया की नेगेटिविटी ऐश को परेशान करे। सलमान चाहते थे उनकी फिल्म ट्यूबलाइट में कटरीना का हो कैमियो। दरअसल सलमान को लगा था कि अगर उनके फिल्म में कटरीना एक छोटे से रोल में भी नजर आती हैं, तो इससे वो फिर से हर तरफ छा जाएंगी। ऐसे में सलमान कबीर के पास गए, मगर कबीर खान को सलमान का आइडिया फॉस लगा और सलमान की काफी कन्विंस करने पर भी कबीर खान कटरीना के कैमियो रोल के लिए एग्री नहीं हुए। कंगना ने ज़ूम पर एक्सक्लूसिवली कंफर्म की अपनी शादी की न्यूज। प्लैनेट बॉलीवुड पर कंगना ने खुद बताया कि वो ईयर 2017 में बंध जाएंगी शादी के बंधन में। I'm sure it's going to break a lot of hearts, but you've already, there's one thing being said that you apparently might get married this year. Of course. There is? Yes. ऐसे में सब यही जानना चाहते हैं कि वो लकी मैन कौन है जिनके साथ कंगना शादी का डिसीजन ले चुकी हैं। और जब ये सवाल कंगना से पूछा गया तो उनका कुछ ये कहना था। Or like give us little hints on how. No, let's just No? this, like I said, this week is for Rangoon. Okay. Let's just talk about it. We have enough time. The year has just started. We have enough time to talk about it. नील नितिन मुकेश के रिसेप्शन पार्टी पर पहुंचे कई बॉलीवुड सिलेब्स इस लैविश पार्टी पर नजर आए। सलमान खान, यूलिया वंतूर, कटरीना कैफ, अभिषेक, अमिताभ, जया बच्चन, करण सिंह ग्रोवर, बिपाशा बासु, जैकी श्रॉफ, रेखा जी, आफ्ताब शिवदसानी विद वाइफ एंड तुषार कपूर। शाहिद कपूर का प्री बर्थडे बैश रहा एक स्टार स्टडेड इवेंट। यहाँ पहुंचे बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, कटरीना कैफ, आलिया भट्ट, वरुण धवन एंड हिज गर्लफ्रेंड नताशा, फरहान अख्तर, करण जौहर, सारा अली खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा और अयान मुखर्जी के साथ कई और सिलेब्स ने मिलकर बनाया शाहिद का प्री बर्थडे बैश और स्पेशल। क्या सोनम कपूर भी अपने फैमिली को छोड़कर अपने बैचलर पैड में जाने की कर रही है तैयारी? सलमान खान ने अपने फैन से कनेक्ट करने के लिए अपनाया कौन सा इनोवेटिव आइडिया? All this and more coming up in our next show 30 में 30. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.